can you walk me through why does this misalignment actually happen? Okay, so I would like to say the misalignment happens because of four predominant reasons. And basically misalignment, which is a very common problem. Right. But can you walk me through why does this misalignment actually happen? Okay, so I would like to say the misalignment happens because of four predominant reasons. Reason number one is genetic factors. Sometimes what happens is the jaw size is inherited from one parent and the tooth size is inherited from another parent. So there is a tooth size, jaw size discrepancy. Imagine that a particular patient inherited very small tooth size from one parent and very small jaw size from another parent. The effective match will fit in a way that the patient's teeth will be irregularly placed, right? And if the teeth are irregularly placed, this kind of a patient will end up having a dental crowding, right? So this is one factor why misalignment happens. So basically, jaw size and tooth size, if there's a difference, Right. that will cause misalignment, right? Right. Okay. Right. So this is one of the reasons. Second reasons is habits. Okay, a lot of patients in their childhood would have habits like a thumb sucking habit or a tongue thrusting habit. Thumb sucking, as we all know, why thumb sucking happens. Tongue thrusting, I would like to emphasize, is patients who swallow with keeping the teeth in contact with, keeping the tongue in contact with their teeth. In that situation, the teeth are pushed ahead. When the teeth are pushed ahead, in that situation, the teeth are either spaced out or there is an open bite. So tongue thrusting is also one of the common habits why misalignment happens. So you said open bite. Can you emphasize that a little bit more? So open bite is a condition wherein what happens, what is the normal? Let's understand what is the relation of the upper teeth with the lower teeth. Normally the upper teeth are ahead and the lower teeth are behind, and there is a horizontal and vertical overlap. And this horizontal and vertical overlap has to be around 2 millimeters. Okay, if this is not around 2 millimeters, what happens is the entire muscular balance and your bite balance goes away. Okay, right? In open bite condition, what happens is the teeth are not in contact in the front. So there is no horizontal and vertical overlap. So the teeth are apart by around 2 millimeters, right? This is what is an open bite, right? So yes. Okay. So if it is more than 2 millimeters, so on an average, ये कितना distance हो सकता है कुछ बच्चों में? कुछ बच्चों में डीप बाइट होता है, जैसे मैंने आपको बताया ओपन बाइट, जहाँ पे ऊपर और नीचे के दांत कांटेक्ट में नहीं है. बट कुछ कंडीशंस में डीप बाइट भी हो सकता है, जहाँ पे कांटेक्ट बहुत ही ज्यादा है. ठीक है. सो अगर आप एक नॉर्मल डिस्टेंस मुझे पूछेंगे अराउंड से 1 to 3 millimeters, राइट? अगर 1 millimeter से कम है ये डिस्टेंस तो इसे ओपन बाइट कहा जाएगा, और अगर 4 millimeter से ज्यादा है तो इसे डीप बाइट कहा जाएगा. Okay, understood. So you said right now there are two main reasons why this happens: genetic, and second is habits. Are there any other reasons that misalignment can happen? Yes, misalignment can also happen with age. Okay, क्या होता है कि जैसे हमारी rest of the body tissues है, they lose water content and they lose elasticity. वैसे हमारे gum fibers हैं, जो gum fibers भी they tend to lose elasticity over a period of time, right? जब वो इलास्टिसिटी खो देते हैं, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि दांत अपने जो फोर्सेस में रहते हैं, जैसे अगर टंग के फोर्सेस हैं या मसल्स के फोर्सेस हैं, उस पे गिव अवे कर लेते हैं, और ऐसे सिचुएशन में पेशेंट को स्पेसिंग हो सकती है. ऐसे पेशेंट्स नॉर्मली आते हैं when they were in their 20s or when they were younger, they didn't have any spacing issues or they didn't have any misalignment. But when they reached their 40s, they started having misalignment or spacing. Okay, and this could also be related to hormones. ठीक है. फीमेल्स में ज्यादा देखा जाता है क्योंकि फीमेल्स में हार्मोनल इश्यूज जो है बोन रीमॉडलिंग को काफी जल्दी अफेक्ट करते हैं. So in women especially, does this happen during menopause or during pregnancy, any of those conditions? Yes, pregnancy में भी हो सकता है और menopause में भी, but menopause में ज्यादातर के. Okay, understood. So basically हमारे 4 main reasons हुए. Genetic factors हो गए, हमारी habits हो गई, over the age एक हो गया, and hormonal imbalance हो गया. Correct? Yes, right. Okay. So ये जो habits वाला part है, is there something that parents can do? Any habits they can improve right from the very beginning, right from the start, so that it can avoid misalignment completely in children? Yes.
जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, होता है थंब सकिंग वाला हैबिट। जो थंब सकिंग वाली हैबिट होती है, ये जो है ये बहुत डेंजरस हैबिट है। ओके, जब भी थंब सकिंग करते हैं तो क्या होता है, हम जो बच्चा होता है वो थंब पैलेट के अराउंड रखता है और कस के पूरा वैक्यूम फॉर्म करता है, तो मस्कुलर बैलेंस इज कम्प्लीटली ऑफ, राइट। तो अपर टीथ जो है वो बाहर की तरफ स्टिक आउट करते हैं एंड द अपर आर्च बिकम्स वी शेप्ड। ठीक है, ये बहुत बड़ा साइन है कि पेरेंट्स शुड look into what is the child practicing, and if they want to stop this habit, one method is they can paint the thumb nail with a polish called as femite. वो हेल्दी होती है 100%, and it is available at the medical store also. ठीक है, अगर एक ऑर्थोडोंटिस्ट के पास आप विजिट करेंगे तो वो आपको सजेस्ट करेंगे कि फेमाइट जो है आप थंब नेल के ऊपर वार्निश की तरह लगाएं, और फिर जो है पेशेंट, because the femite is very bitter in taste. Okay, so that will automatically the child will not want to suck his thumb. Right. Understood. तो ये एक तरीका है to get rid of it. Another method is physical restraint. ठीक है, सपोज बच्चे को आदत है कि वो अनकॉन्शियसली ये करता है। ठीक है, बच्चा सो रहा है एंड रात को उनको हैबिट है कि थंब सकिंग की, है ना। ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, एक फिजिकल कॉन्स्ट्रेंट बैंडेजेस डाल सकते हैं अराउंड द हैंड, एंड जब आप ये डालेंगे तो रात को तो बच्चा वो पूरा बैंडेज खोलेगा, तब तक तो उनकी जो नींद है वो खुल जाएगी, है ना। तो ये धीरे धीरे हैबिट जो है उनकी कम होने लगेगी। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, एंड ये कितना कॉमन है, लाइक हाउ डू पीपल नो दिस, लाइक इज देयर अवेयरनेस अराउंड दिस? सो अवेयरनेस डेफिनेटली थंब सकिंग को लेके तो है ही, लेकिन अवेयरनेस टंग थ्रस्टिंग को लेके और बाकी सारी हैबिट्स को लेके थोड़ी सी कम है। बट धीरे धीरे बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड बिकॉज ऑफ सो मेनी कैंपेन्स दैट इवन इंडियन ऑर्थोडोंटिक सोसाइटी इज रनिंग, अवेयरनेस आ रही है हमारी सोसाइटी में, आ रही है। ओके, सो डॉक्टर आई अंडरस्टूड कि ठीक है, दीज आर द मेन कॉजेज ऑफ मिसअलाइनमेंट। तो वंस मिसअलाइनमेंट हैपेंस, व्हाट आर द teeth straightening appliances and how do they correct this misalignment? Okay, so एक अच्छा मेथड ये है कि दो टाइप के हम इसे कैटेगरी में समझ सकते हैं। वन इज द ब्रेसेस एंड अनदर इज द अलाइनर। ओके, तो ब्रेसेस को समझने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि अगर कोई भी चीज को आपको हिलाना है तो उसके ऊपर हैंडल चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर आपको ग्रास्प चाहिए। तो इस तरीके की ग्रास्प जो है आपको दांतों पे मिल सकती है बाय पुटिंग अ ब्रैकेट, एंड ब्रैकेट के अंदर जब वायर जाती है तो ब्रैकेट और वायर के इंट्रैक्शन से जो है वो दांत हिलते हैं। तो ये ब्रेसेस का कॉन्सेप्ट है, राइट। और ब्रेसेस के को एडजस्ट करने के लिए ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाना पड़ता है वंस इन अ मंथ। ओके, राइट। अलाइनर्स में कॉन्सेप्ट बहुत ही डिफरेंट होता है। अलाइनर्स पे दांतों के ऊपर ग्रास्प लेने के लिए एक प्लास्टिक फॉर्म शीट होती है, ठीक है, जो दांत को 360 डिग्री ग्रास्प करके रखती है। ठीक है, और अलाइनर जो है एक प्लास्टिक फॉर्म्ड वैक्यूम ट्रे होता है। ये जो है एवरी 10 डेज, 7 डेज या 14 डेज जैसे आपके ऑर्थोडोंटिस्ट आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो आपको चेंज करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से दांत हिलते हैं। जब ये ग्रास्प ली जाती है और धीरे धीरे दांतों के ऊपर प्रेशर बनता है तो एक साइड से बोन डिपोजिशन होती है और एक साइड से बोन जो है रिसॉर्प्शन होता है। तो बोन रीमॉडलिंग जो होती है उसके कारण जो दांत है वो बोन और गम्स के अराउंड हिलते हैं। एक मिनट, ये जो आपने बोन रीमॉडलिंग बोला, कैन यू एक्सप्लेन दैट अ लिटिल बिट मोर? ठीक है, तो ये बोन रीमॉडलिंग एक्टिविटी कैसे होती है, जहाँ पे हम ब्रेसेस या अलाइनर्स द्वारा दांत को एक प्रेशर डालते हैं। तो सपोज अगर दांत बहुत आगे की तरफ प्लेस्ड है, ठीक है, और दांत पीछे की तरफ हिल रहे हैं, तो आगे की तरफ जो है बोन जो है रिजॉर्ब होती है, ठीक है, और पीछे की तरफ बोन डिपॉजिट होती है। ठीक है, तो दांत धीरे 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 फिर पीछे आने लगते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। Okay, so is this personalized to every child? Right. Okay. It So is. how does this go? How do you take the measurements? Can you explain this template formation also, please? Yes. So अगर आप ब्रेसेस की बात करें तो ब्रेसेस के अंदर कस्टमाइजेशन थोड़ा कम होता है। इट नॉर्मली डिपेंड्स ऑन द स्किल ऑफ योर ऑर्थोडोंटिस्ट। बट अगर आप अलाइनर टेक्नोलॉजी के बारे में पूछेंगे मुझे, तो अलाइनर में सब कुछ प्री प्लान्ड होता है। Okay. ठीक है, एक स्कैन लिया जाता है और इस स्कैन को एक अलाइनर सॉफ्टवेयर के अंदर डालकर ये सारी मूवमेंट जो है वो प्री प्लान की जाती है। Okay. So this could be very personalized, that means. Right. Very customized. Okay, very customized. Understood.
But you know, doctor, when I used to refer my patients to see an Hmm. orthodontist, or when I could see they require braces, a lot of people had this misconception that array, there's no need, it's just a cosmetic problem, it will get solved on its own. Hmm. So, is misalignment genuinely just a cosmetic problem, or does it also have other impacts? Okay, very interesting question this is, because I also encounter this question many times in my practice. Let me answer that to you कि बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, टीथ स्ट्रेटनिंग के। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है, जब दांत उनकी ओरिजिनल और सही पोजीशन पे रहेंगे तो क्या होगा, पेशेंट के लिए क्लीनिंग बहुत आसान हो जाएगी। क्लीनिंग आसान हो जाएगी तो जो केरीज इंसिडेंस है, ठीक है, दांतों में जो सड़न लगने का जो इंसिडेंस है वो कम से कम होगा, राइट। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है कि जब ब्रशिंग ठीक से नहीं होता है तो टार्टर डिपोजिशन बहुत जल्दी होता है, ठीक है। टार्टर डिपोजिशन के कारण गम डिसऑर्डर्स होना, टार्टर डिपोजिशन के कारण माउथ का स्मेल होना, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। सो जब आपके दांत रेगुलरली प्लेस्ड होंगे, यू विल बी लेस ससेप्टेबल टू हैव अ डीके फॉर्मेशन, लेस ससेप्टेबल टू हैव गम डिसऑर्डर्स, ये एक है। देन जब रेगुलरली प्लेस्ड टीथ होते हैं, ठीक है, सो टीथ कैन एक्चुअली सर्व देयर मैक्सिमम पोटेंशियल। Correct. एक दांत जो है, आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे आप उसके सारे सर्फेसेस को यूज कर रहे हैं। एक और फैक्टर होता है स्पीच, ठीक है। जो पेशेंट जिनके दांत में शायद ओपन बाइट हो या दांत में स्पेसिंग हो, तो उनकी जो स्पीच है वो क्लियर नहीं होती, ठीक Okay, है। सो interesting. देयर इज लिस्प, So, राइट। can you explain this a little bit more, please? Yeah. So how I like to explain this is, अगर सपोज किसी पेशेंट के दांत इस तरीके से प्लेस्ड हैं, ऊपर और नीचे के, जहाँ बहुत सारी स्पेसिंग है, सो टंग के पास में जब भी कोई प्रोनाउंसिएशन हो रही है तो एयर एस्केप हो रही है, ठीक है। एयर एस्केप होने के कारण बहुत सारी जो साउंड्स हैं, जैसे एफ है, वी है, एस है, टी है, ये सारे जो साउंड वाउल्स है, ये ठीक से सुनाई नहीं देते हैं। Okay, interesting. Okay, interesting. So, with braces and aligners, ये कितने टाइम में प्रॉब्लम ठीक हो सकती है? So it is again, I would say it depends on the age of the patient. It depends on the severity of the misalignment that is there. Also depends whether this is a dental condition or it is a skeletal condition. Okay. So एक चीज का आंसर देना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि it is very customized to a particular patient. Understood. Yet on an average, commonly what do you generally see? So around 1 to 1.5 year is what I have seen, but it could sometime extend from 1.5 to 2 years also. Understood. So I think one another problem that I would see, the parents have mainly, इसके बच्चा brush कैसे करे once braces or aligners are intact. So are there some other methods for that as well? Okay, so the three things that I like to prescribe to all my braces and aligner patients, I would like to mention that one very big thing is the fluoride mouthwash, ठीक है। क्योंकि जब हम ब्रेसेस या अलाइनर्स पहनने के लिए पेशेंट्स को कहते हैं, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि दांत में इरेगुलरिटीज आप ज्यादा ऐड कर रहे हैं, है ना। इरेगुलरिटीज ज्यादा ऐड करने के कारण पेशेंट के लिए ब्रशिंग और डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। Correct. तो ब्रशिंग और डिफिकल्ट होने के कारण केरीज इंसिडेंस इंक्रीज हो सकता है। तो इस कारण जब हम फ्लोराइड माउथ वॉश पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, तो फ्लोराइड इज एन एंटी कैविटी सब्सटेंस, राइट। तो फ्लोराइड माउथ वॉश तो हमें 100% सजेस्टेड है, इट्स अ recommendation from my side. Second thing that is a recommendation from my side is a specialized kind of toothbrush, ठीक है। ये toothbrush is meant specially for patients who have braces or aligners, right? क्योंकि मैंने बताया irregularities हो जाते हैं, तो इस irregularities को ठीक से क्लीन करना जरूरी है। तो टूथब्रश के अंदर स्पेशल कट्स होते हैं, ठीक है, जो ऑर्थो ब्रश जिसे कहा जाता है, और ऑर्थो ब्रश इज माय नंबर 1 recommendation for such patients. थर्ड थिंग इज द इंटरडेंटल ब्रश, ठीक है। दांतों के बीच में कुछ कुछ चीजें अटक जाती हैं। सपोज एक ब्रेसेस पेशेंट है, उन्होंने अभी एक केक खाया, ठीक है, तो ये केक खाने के कारण दांतों के बीच में कुछ कुछ फंस गया। अगर ये नहीं निकाला गया तो दिस विल स्टे ऑन टू द टीथ फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, करेक्ट, राइट, एंड दिस विल कॉज डीके, राइट। सो जो छोटा ब्रश है वो पेशेंट हर जगह कैरी कर सकता है और उससे क्लीन कर सकता है, ठीक है। सो 3 things that I recommend is a fluoride mouthwash, a specialized ortho brush, and a specialized interdental brush. Understood.
entire chapter. Tell me something. What is that one most alarming condition जो parents अपने बच्चों में अगर देखें and they should immediately rush to an orthodontist? ओके तो आई वुड से कि सबसे ज्यादा अलार्मिंग ऑर्थोडोंटिक कंडीशन जो पेरेंट्स को नोटिस करनी चाहिए इज अ क्रॉस बाइट. क्रॉस बाइट, यस. ओके सो क्रॉस बाइट क्या होता है हम जानते हैं कि अब जैसे मैंने आपको समझाया कि ऊपर और नीचे के दांतों का रिलेशन ऐसा होता है कि ऊपर के दांत आगे की तरफ और नीचे के दांत जो है पीछे की तरफ होते हैं और ऊपर और नीचे के दांतों के बीच में डिस्टेंस एटलीस्ट 2 मिलीमीटर्स होना ही चाहिए. ठीक है, लेकिन कभी कभार ये रिलेशन रिवर्स भी हो जाता है. ठीक है, जिसे क्रॉस बाइट कहते हैं. ऐसे सिचुएशन में ऊपर के दांत जो है वो पीछे की तरफ और नीचे के दांत जो है वो आगे की तरफ हो जाते हैं. ठीक है, तो इस क्रॉस बाइट कंडीशन जो है could be a single tooth cross bite or it could be a full arch or a half arch cross bite. And if that is a condition that is there in your child, it is an alarming condition and you must visit an orthodontist. इससे क्या होता है कि जब हमारी बाइट लॉक हो जाती है तो हमारे फेशियल बोन्स की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है. ओके, ठीक है, और जब फेशियल बोन्स की ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो जाती है तो हमारी फेशियल जो बैलेंस है, जो मस्कुलर हार्मनी है और जो हमारी बाइट है वो कंप्लीटली रुक जाती है at that very particular point of time. So I would always recommend all the parents ki cross bite is something that you should watch out for and that they should never ignore. Thank you for being a part of the Body Talk. If you found this episode insightful, don't forget to subscribe for more such interesting conversations. Also, keep listening to your body because it does talk. Thank you.